Hello guys. The topic of this video is hypothesis testing. Hypothesis testing. In this video I will discuss general concepts about what is hypothesis, how do we test a hypothesis, and then in the subsequent videos we will see how do we use hypothesis testing in regression. Okay. So general concepts. So let us first discuss what is a hypothesis. Let us discuss what is a statistical hypothesis. So a statistical hypothesis is a claim or assertion about the value of a single parameter What do we mean by a single parameter? जैसे हमने population में parameter discuss किया था ना, population के parameter क्या होते हैं? Population के parameter could be उसका population का mean, could be population का variance. So statistical hypothesis is a claim or an assertion about the value of a single parameter, about the values of several parameters, or about the form of an entire probability distribution. ठीक है, so this is the technical definition of a statistical hypothesis. So what we are saying here is that a statistical hypothesis is a claim or an assertion about the value of a single parameter, about the values of several parameters, or about the form of an entire probability distribution. So आप कोई चीज hypothesis बना रहे हो कि मतलब आप ये जो है claim कर रहे हो, आप ये assert कर रहे हो. So that is an hypothesis. किसके बारे में, stats पे किसके बारे में हम generally assert करते हैं? About the value of a single parameter which could be population mean or population variance or other parameters population के, या सेवरल पैरामीटर्स एक हाइपोथेसिस में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप मीन के बारे में भी लिख रहे हो और वेरिएंस के बारे में भी लिख रहे हो, और अबाउट द फॉर्म ऑफ एन एंटायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल आपने डेटा देख के एक हाइपोथेसिस बनाया कि दिस डेटा सीम्स टू बी टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, सो दैट इज एन हाइपोथेसिस. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल टू मेक दिस थिंग क्लियर. Suppose a company is considering putting a new type of coating on a metal that it produces. So there is a company which produces a metal and वो क्या कर रही है, वो now it is considering putting a new type of coating, उस metal पे एक नई type of coating को जो है put करने का decision ले रही है कि whether or not should I put a new type of coating on that
मेटल। ठीक है, सो द ट्रू एवरेज wear life with the current coating is known to be 1000 hours। तो बेसिकली जो अगर करंट कोटिंग है, मतलब अगर वो जो है नई कोटिंग नहीं पुट कर रही, जो करंट कोटिंग के साथ ट्रू एवरेज, ट्रू बेसिकली रिप्रेजेंट पॉपुलेशन का। ठीक है, तो हमें पता है कि एवरेज वेयर लाइफ विद द करंट कोटिंग ऑफ दैट मेटल इज 1000 आवर्स। कि अगर आपने कुछ उस पर कोटिंग नहीं किया, मतलब आपने नई वाली कोटिंग नहीं की, जो पुरानी अभी तक कोटिंग वो कर रहे हैं, उससे एवरेज वेयर लाइफ उस मेटल की कितनी है कि 1000 आवर्स है। ठीक है, नाउ let mu denote the true average let mu denote the true average life for the new coating तो अभी करंटली जो कोटिंग के साथ 1000 आवर्स है, और जो न्यू कोटिंग के साथ जो एवरेज लाइफ हो रही है, हम उसको म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको पता है कि कंपनी नई कोटिंग कब यूज करेगी। कंपनी so the company would switch to the new coating only if mu exceeds 1000 आवर्स। ठीक है, तो मैं दोबारा ये समझा रहा हूँ कि अभी तक जो कंपनी जो कोटिंग यूज कर रही है, तो आप उसको कोटिंग की लाइफ बोल रहे हो, तो दैट कोटिंग लास्ट उसकी एवरेज जो लाइफ है वो 1000 आवर्स है। ठीक है, अब नाउ इट इज डिसाइडिंग कि एक नई कोटिंग क्या मैं अडॉप्ट करूं कि नहीं, और तो वो कब उस कोटिंग की एवरेज लाइफ क्योंकि जो कि हमें पता नहीं है वो म्यू है। ठीक है, तो कंपनी जो है कब उस न्यू कोटिंग को अडॉप्ट करेगी, जब न्यू जो होगा वो 1000 आवर्स से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली तभी उसको फायदा होगा। ठीक है, तो इन दिस केस वी फ्रेम, so this is an hypothesis testing problem because company is considering to switch to a new coating। ठीक है, company is considering to switch to a new coating, so this is a hypothesis testing problem। now in any hypothesis testing problem, in any hypothesis testing problem, there are always two contradictory there are always two contradictory there are always two contradictory hypotheses under consideration। there are always two contradictory hypotheses under consideration। hypothesis testing में हमेशा दो contradictory hypothesis हम लोग फ्रेम करते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में क्या होगा, so your first hypothesis is that जो कि so first हम जनरली वो hypothesis बनाते हैं कि जो कि हमें पहले से पता होता है
ठीक है, विच इज नॉट टू बी टेस्टेड, विच इज समथिंग विच इज जनरली ट्रू। तो हमें पता है कि एवरेज wear life, so null hypothesis would be that the average wear life with the new coating is 1000 hours. Average wear life with the new coating is 1000 hours. ठीक है, so this is one hypothesis. ठीक है, अब दूसरा हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे? दूसरा हाइपोथेसिस हम बनाएंगे that your mu is greater than 1000, that your mu is greater than 1000. ठीक है, तो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देखो हमें टेस्ट क्या करना है कि जो नई कोटिंग के साथ एवरेज लाइफ जो है, या उस नई कोटिंग की एवरेज लाइफ 1000 से ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज टू बी टेस्टेड, दिस इज समथिंग विच इज टू बी टेस्टेड। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी गिवन, कि मतलब अभी तक जो है कोटिंग के साथ जो पुरानी कोटिंग है 1000 तो है ही। ठीक है, 1000 तो आपकी है ही, तो अगर वो ऑब्वियसली अगर नई कोटिंग पे स्विच कर रहे हैं तो वो तभी स्विच करेंगे जब वो 1000 से ज्यादा होगी। ठीक है, so this first kind of hypothesis is called as I'll give more examples. So we have that the first hypothesis is mu is equals to 1000 and the second hypothesis is mu is greater than 1000. ठीक है, the first hypothesis is called as a null hypothesis. The first hypothesis is called as a null hypothesis. Now what is a null hypothesis? Null hypothesis is denoted by H naught. Null hypothesis is denoted by H naught. ठीक है, it is the claim that is initially assumed to be true. It is the claim that is initially assumed to be true, or that is the prior belief claim. The prior belief claim. तो नल हाइपोथेसिस हम कैसे सेट करते हैं? वो वाला क्लेम है जो कि इनिशियली अज्यूम टू बी ट्रू है, मतलब कि जो कि कॉमन नॉलेज है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो बेसिकली इसका आप इजी वे में देखना चाहते हो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उसको हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, तो अब हम बोलते हैं द फर्स्ट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस विच इज द क्लेम दैट इज इनिशियली अज्यूम टू बी ट्रू, की जो कि कॉमन नॉलेज है, जो कि ऑब्वियसली गिवन है। सेकेंड जो हाइपोथेसिस है वो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस होता है। सेकेंड हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज alternate alternative hypothesis. Now what is an alternative hypothesis? An alternative hypothesis, it is an assertion which is contradictory. It is an assertion which is contradictory to your null hypothesis, that is your H naught. It is an assertion which is contradictory to your null hypothesis H naught. ठीक है, so alternative hypothesis is denoted by HA. Alternative hypothesis is denoted by HA, और कुछ जगह कुछ बुक्स में उसको H1 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो HA या H1 से आपको
इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करना है। नाउ सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर इज कि आपने बोला कि नल हाइपोथेसिस की कॉमन नॉलेज है कि जनरली कोटिंग के साथ जो एवरेज लाइफ होती है, तो म्यू क्यों, क्योंकि एवरेज लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, म्यू इज 1000, ठीक है, जनरली कोटिंग के साथ। अब हमने एक नई कोटिंग कर दी, ठीक है, नई कोटिंग कर दी, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसके साथ हमारा क्या एवरेज लाइफ 1000 से ज्यादा हो गई, एवरेज लाइफ क्या 1000 से ज्यादा हो गई। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर इज, अब देखो, आप जब आप टेस्ट करोगे इसको, तो टेस्ट करोगे तो किसी सैंपल पे टेस्ट करोगे, ठीक है, कि आप क्या कुछ कुछ जो है आप मेटल्स पे लगा के, कुछ मेटल सैंपल्स पे लगा के वो नई वाली कोटिंग आप ये देखोगे कि क्या उनकी एवरेज लाइफ 1000 से ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू डिसाइड the objective is to decide based on the sample information, the objective is to decide based on the sample information which of the two hypotheses is correct, which of the two hypotheses which of the two hypotheses is correct। तो बेसिकली आपके पास जो भी सैंपल होगा उसको देख के आपने ये बताना है कि इसमें से नल हाइपोथेसिस ठीक है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ठीक है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन सैंपल इंफॉर्मेशन विच ऑफ दीज टू हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ठीक है। अब लेट मी टेक अ नॉन स्टैटिस्टिकल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस मोर क्लियरली। तो हम इसकी जो है एक एनालॉजी डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्रायल्स हमने सुने हैं, ठीक है। क्रिमिनल ट्रायल्स मतलब जो है एक क्रिमिनल जो है पकड़ा गया। अब क्रिमिनल जो है पकड़ा गया तो हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए जज या मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो हमेशा मतलब एक माइंडसेट होता है और यूएस में तो यही माना जाता है कि हम असर्शन क्या लेकर चलते हैं, दैट द इनिशियल असर्शन क्या होता है, दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट, तो अगर आप उसको जो है पुलिस वाले उसको पकड़ के कोर्ट में ले गए तो जज का क्या इनिशियल अजम्पशन है, दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट, ठीक है। दिस इज एन अजम्पशन विच इज इनिशियली बिलीव टू बी ट्रू। अब पुलिस का क्या काम है, उसके अगेंस्ट जो है सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस करना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस to be produced for the jury to reject this claim, तो मतलब इसमें मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि आप जो है जज का इनिशियल इंप्रेशन क्या होता है कि जो एक्यूज लेकर आए हैं वो इनोसेंट है, ठीक है। तो दैट इज अ नल हाइपोथेसिस हम क्या लेकर चलते हैं, विच इज assumed to be true, which is a common knowledge, ठीक है, which is the common knowledge। So H naught is that accused is innocent, तो null hypothesis जो common knowledge है, ठीक है। alternate hypothesis क्या है, alternate hypothesis इसका contradictory hypothesis है, that the accused is not innocent। तो अब क्या है कि पुलिस को सफिशिएंट प्रूफ देना है टू रिजेक्ट द नल, ठीक है, कि आप सफिशिएंट क्लेम दो, सफिशिएंट एविडेंस दो कि जो हम ये सोच रहे हैं कि एक्यूज इनोसेंट है, ऐसा नहीं है, एक्यूज इज नॉट इनोसेंट। तो पुलिस को ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव करना है, तो HA को हम जनरली रिसर्चर हाइपोथेसिस कहते हैं, HA को हम जनरली
अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्चर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। Why do we call it as a researcher's hypothesis? See, null hypothesis is something जो already proven है, जो already existing है। अगर आपको उसको डिस्प्रूव करना है तो वो काम किसका है, पुलिस का है या रिसर्चर का है? तो आपको उसको जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा। तो वो एविडेंस जो देता है वो रिसर्च करके एविडेंस देता है, ठीक है, वो रिसर्च करके एविडेंस देता है। सो आई एम रिपीटिंग, सो नल हाइपोथेसिस समथिंग विच इज इनिशियली फेवर्ड बिकॉज ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस समथिंग विच इज इनिशियली फेवर्ड, ठीक है, विच इज इनिशियली फेवर्ड because it is already existing. Alternative hypothesis is something which the researcher has to prove, and हम null hypothesis को तभी रिजेक्ट करेंगे जब हमारे पास रिसर्चर ने या पुलिस ने sufficient एविडेंस दिया होगा, ठीक है, जब हमारे पास रिसर्चर ने sufficient एविडेंस दिया होगा। So I am making two statements here. The null hypothesis will be rejected. The null hypothesis will be rejected in favor of the alternative hypothesis. The null hypothesis will be rejected in favor of the alternative hypothesis only if your sample evidence suggests that H naught is false. Only if the sample evidence suggests that H naught is false. ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस इज समथिंग जो आप ट्रू लेकर चलोगे, विच इज समथिंग जो इनिशियली फेवर है, उसको हम तभी रिजेक्ट करेंगे कि हम उसको तभी गलत ठहराएंगे जब हमारा जो सैम्पल एविडेंस हमारे पास है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, ठीक है। इफ द सैम्पल does not strongly contradict H naught, we will continue to believe in the possibility of the null hypothesis. कि अगर सैम्पल एविडेंस ने ये सजेस्ट नहीं किया कि H नॉट जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, तो आपको ना चाहते हुए भी मतलब जो है उसी को ही बिलीव करना पड़ेगा। तो इसका क्रिमिनल उसमें क्या है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सबूतों के अभाव में हम उसको रिहा कर रहे हैं, तो शायद जज को अंदर से इंक्लिनेशन हो कि ये जो है क्रिमिनल है, ये जो ये एक्यूज है इसने सही में क्राइम कमिट किया है, बट एविडेंस ये स्ट्रांगली सजेस्ट नहीं करता। तो अगर एविडेंस सजेस्ट नहीं करता तो आपको H नॉट को ही ट्रू मानना पड़ता है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस इज समथिंग विच इज इनिशियली अज्यूम्ड टू बी ट्रू। उसका कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम तभी मानेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस होगा नल को रिजेक्ट करने का। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम तभी मानेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस होगा नल को रिजेक्ट करने का। तो बेसिकली हम हमेशा ये बोलते हैं कि there are two possible conclusions from a hypothesis testing problem. There are two possible conclusions from a hypothesis testing problem. दो पॉसिबल कंक्लूजन्स होते हैं, या तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ईदर यू आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस और यू
fail to reject null hypothesis. You fail to reject null hypothesis. ठीक है, हम तो फेल रिजेक्ट एच नॉट ही बोलते हैं, मतलब वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते दैट वी एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये हम कभी नहीं बोलते दैट वी एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्दो उसका मतलब वही होता है, बट दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग कि देर आर ओनली टू पॉसिबल ऑप्शन, कि अगर आप नल को जो है रिजेक्ट कर रहे हो, नल को रिजेक्ट कर रहे हो, सो दैट मीन्स देयर इज एन एविडेंस इन फेवर ऑफ द alternate hypothesis, but we do not say that we accept that hypothesis. ठीक है, we do not say that we accept that hypothesis, we just say that we reject the null hypothesis. ठीक है, although implied meaning is that we are accepting the null hypothesis. And the second is fail to reject H naught. We say that we fail to reject H naught. Fail to reject H naught का मतलब है कि sufficient evidence नहीं है null hypothesis को reject करने के लिए, sufficient evidence नहीं है null hypothesis को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो इस पे जो है सेंटर करता है कि आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो या उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, किस कैसे डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल डेटा। इज दिस क्लियर? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस थी नल हाइपोथेसिस, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो चीज जो कि कॉमन नॉलेज है, जो कि सबको पता है, जो कि एग्जिस्टिंग थ्योरी है। ऑल्टरनेट है समथिंग जो कि रिसर्चर का जो है उस पर बर्डन है उसको प्रूव करने, मतलब उसको बताने का कि नहीं जो अभी तक चल रहा है वो ठीक नहीं है, मेरे पास एविडेंस है कि नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। Now, let us discuss what are the various forms of your null hypothesis and alternate hypothesis. Various forms of null hypothesis and alternate hypothesis. Now, in our analysis, H naught will generally be stated as an equality claim. H naught will generally be stated as an equality claim about the population parameter, ठीक है। तो योर नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होगा कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि मीन 1000 है, वेरिएंस इतनी है, ये है, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इज ऑफ द फॉर्म दैट योर एच नॉट, इसको हम डोट करेंगे कोलन, एच नॉट इज नल कोलन दैट योर थीटा विच इज योर पॉपुलेशन पैरामीटर is equal to theta naught, which is a specified number, which is something which is known, which is a specified number which is known, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कि नल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के तीन तरीके हो सकते हैं। या तो मैं लिखूं दैट एच ए इज दैट एच ए कोलन दैट योर थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, दैट इज वन वे। सेकेंड इज आई राइट that your alternative hypothesis is this is HA.
Alternative hypothesis is theta is actually greater than theta naught, and third is your alternative hypothesis is that theta is less than theta naught. So this will depend on your question कि question exactly क्या पूछ रहा है. तो ये तीन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है. So for example, जो अभी हमने वो डिस्कस किया था एवरेज बेयरिंग वाला, तो उसमें कि मेरा जो इनिशियली जो हमें पता है कि एवरेज जो लाइफ of that metal with the coating is 2000 hours. So this is my null hypothesis. So 1000 hours, and this is my theta naught. मतलब जो initial value of that parameter है. Parameter here is mu. ठीक है. So alternative hypothesis could be that mu is not theta naught. ठीक है. Alternative hypothesis could be that mu is greater than this, or alternative hypothesis could be that mu is less than this. Alternative hypothesis could be that mu is less than this. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ये तीन तरीके के वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. जैसे उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था क्योंकि रिसर्चर को ये बताना था कि वो न्यू कोटिंग को अडॉप्ट करके जो है एक्चुअली में जो एवरेज लाइफ है वो 1000 से ज़्यादा हो रही है. ठीक है. तो ये उसका बर्डन था, उसको एविडेंस देना था नल को रिजेक्ट करने का इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव. नल को अगर आप रिजेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली किसके फेवर में जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव के फेवर में जा रहे हैं. ठीक है. बेसिकली नल इज की 1000 ही है, नल को रिजेक्ट कर रहे हो आप, नल को रिजेक्ट कर रहे हो इन फेवर ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. तो अगर इनइक्वालिटी होती है, मतलब जैसे ये वाला फर्स्ट वाला होता है, अगर ये फर्स्ट वाला होता है तो उसको हम कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट, क्योंकि ये हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी कॉल इट एज अ टू टेल्ड टेस्ट. तो जो ये फर्स्ट वाला है इसमें आपका जो है इनइक्वालिटी है, तो इट इज कॉल्ड एज अ टू टेल्ड टेस्ट. ठीक है. और इसमें सिर्फ अगर ग्रेटर देन या लेस देन हो तो ये वाले जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज वन टेल्ड टेस्ट. दीज आर कॉल्ड एज वन टेल्ड टेस्ट, क्योंकि इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो है हम एक ही रीजन पे पर्टिकुलर फोकस करते हैं, एक ही रीजन पे पर्टिकुलर फोकस करते हैं. तो बेसिकली अभी आपको क्या रखना है कि अगर आपका नॉट इक्वल टू आएगा तो इट इज कॉल्ड एज टू टेल्ड टेस्ट, अगर ग्रेटर देन लेस देन आएगा तो इट इज कॉल्ड एज वन टेल्ड टेस्ट. क्या याद रखना है कि ये नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन आप इसमें लगा रहे हो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में. नल हाइपोथेसिस तो हमेशा आप इक्वालिटी लेकर ही चलते हो. नल हाइपोथेसिस आपने यहाँ पर लिखवाया जैसे कि in our analysis H naught will generally be stated as an equality claim about the population parameter. ठीक है. ये आपको ये मानना ही पड़ेगा कि नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी क्लेम ही है. ऑल्टरनेट जो है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम है, विच कुड बी एन इनइक्वालिटी और विच कुड बी अ ग्रेटर देन और लेस देन टाइप. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स types of errors in hypothesis testing. So let us discuss this. It would then become clear. In any test, we can make 4 decisions. किसी भी hypothesis testing में आप 4 decisions लेते हो. A is you reject the null when H naught is false. You reject the null hypothesis when null hypothesis is false. मतलब कि null hypothesis false है. ठीक है. मतलब null hypothesis false है और आप अपने सैंपल के बेसिस पे भी उसको रिजेक्ट कर रहे हो. ठीक है. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड इज accept H naught when
एच नॉट इज फॉल्स। सेकेंड डिसीजन क्या है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज जो क्रिमिनल वाला एग्जांपल है, फर्स्ट वाले में कि क्रिमिनल जो है इनोसेंट है, क्रिमिनल माय नल हाइपोथेसिस इज दैट द क्रिमिनल इज इनोसेंट। तो पहला डिसीजन आपने क्या लिया कि आपने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया और सही में क्रिमिनल इनोसेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड है कि आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिमिनल इनोसेंट है लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, थर्ड इज रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, व्हेन एच नॉट इज ट्रू। थर्ड क्या है कि क्रिमिनल जो है इनोसेंट है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने बोल दिया कि नहीं क्रिमिनल इनोसेंट नहीं है, ये भी गलती हो सकती है। ठीक है, ये भी एक डिसीजन हो सकता है। एंड फोर्थ इज एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये चार डिसीजन कैसे आए, तो सारा जो खेल है वो नल हाइपोथेसिस का ही है, सारा जो वो खेल है वो नल हाइपोथेसिस का ही है। तो नल हाइपोथेसिस कुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स, null hypothesis could be either true or false, it is also an hypothesis, it is also a claim। ठीक है, अब अगर वो ट्रू है तो या तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो या आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। अच्छा, मैं एक्सेप्ट वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, बट एक्सेप्ट वर्ड जो है मैंने पहले भी बताया कि एक्सेप्ट ना लिख के वी राइट वी डू नॉट रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब जो है, एक्सेप्ट का मतलब होता है डू नॉट रिजेक्ट भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो अभी इंटरचेंजेबली आई एम यूजिंग इट फॉर मेकिंग द एनालिसिस सिंपलर। ठीक है, इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। फॉल्स है नल तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो लेट मी make a table here. So I am saying H naught can be either true or H naught can be either false. The null hypothesis मान के चलो कि जो accused is innocent. That statement हमें नहीं पता अभी, it could be either true or it could be false, हम तो possibilities discuss कर रहे हैं। ठीक है, you either reject H naught or you don't reject, और यू डोंट रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट है, इम्प्लिसिट मतलब एक्सेप्ट है, बट हम उसको डोंट रिजेक्ट लिखते हैं, डोंट रिजेक्ट एच नॉट। तो अगर एच नॉट ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो आप एरर कमिट कर रहे हो, कोई आपने ट्रू स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, सो देयर इज एन एरर, सो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो विच इज अ करेक्ट थिंग टू डू, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप उसको जो है रिजेक्ट कर रहे हो, विच इज ऑल्सो करेक्ट, फॉल्स चीज को रिजेक्ट करना। नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई चीज फॉल्स थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो विच इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बेसिकली एरर्स कहाँ पर आए, यहाँ और यहाँ आए, कि या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू था आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड दूसरा क्या है नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। So there are two types of errors in hypothesis testing. So rejecting, so first error is rejecting H naught when H naught is true. Rejecting H naught when H naught is true. कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो जबकि नल हाइपोथेसिस ही ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, आप इनोसेंट जो सही में जो है वो कॉन्विक्ट जो है वो इनोसेंट है, लेकिन एविडेंस कुछ ऐसा निकला और आपसे गलती हो गई। ठीक है, और आपने नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज एन एरर, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप 1 एरर, इसको हम कहते हैं, it is called as a type 1 error. So what is type 1 error? Rejecting a null hypothesis when the null hypothesis is true. ठीक है,
and probability of committing a type 1 error is denoted by alpha. Probability of committing a type 1 error is denoted by alpha. कि अगर आप type 1 error commit करने की क्या probability है, that probability is alpha. ठीक है. The second error which you must have guessed is called as a type 2 error. The second error is called as a type 2 error. The second error is called as a type 2 error. So what is a type 2 error? As you can see from the table, that H0 is false and you are accepting H0. So second error is a type 2 error. So you are accepting or not rejecting, accepting H0 when H0 is false. कि वो नल हाइपोथेसिस गलत है और आप उसी को ही एक्सेप्ट कर रहे हो. आपका एविडेंस कुछ ऐसा आया कि आप उसी को ही एक्सेप्ट कर रहे हो या उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे. दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप 2 error, and probability of type 2 error is denoted by beta. ठीक है. So type 2 error की probability is denoted by beta. So there are two errors कि null hypothesis जो है सही है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा क्या है, null hypothesis गलत है और आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. So that is a type 2 error and it is denoted by beta. ठीक है. Now so an ideal test procedure would be to minimize alpha and beta because they both are errors. So ideal test procedure क्या होना चाहिए जो इन दोनों errors की probability को minimize करे, alpha and beta. But इसका मैं proof नहीं करा रहा, but in practice you'll have to remember this only. We can't minimize alpha and beta simultaneously. ऐसा नहीं होता कि हम दोनों को ही simultaneously minimize कर पाते हैं, because if we try to minimize alpha, then beta increases and vice versa. ठीक है. तो दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप अल्फा को मिनिमाइज करना चाहो तो बीटा भी हो जाएगा, उल्टा अल्फा को मिनिमाइज करोगे तो बीटा वुड इंक्रीज. ठीक है. सो व्हाट वी डू इज नाउ, अब सी दिस यू विल हैव टू थिंक ओवर इट कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है. सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है. व्हाट इज टाइप 1 एरर? दैट H0 is true and you are rejecting it, and beta क्या है? टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी that H0 is false and you are not rejecting it. Which of these is more dangerous? सपोज ये आप जो है क्रिमिनल वाला एग्जांपल ही लो. ठीक है. क्रिमिनल वाला एग्जांपल ही लो कि H0 is true. ठीक है.
एच नॉट इज ट्रू, दैट मीन्स दैट द क्रिमिनल इज इनोसेंट, ठीक है, और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो और आप उसको इनोसेंट, आपको एविडेंस, आपने जो है ये एरर कमिट किया कि रियलिटी में क्रिमिनल तो इनोसेंट है, मतलब जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, लेकिन आपने एरर कमिट किया और आपने उसको जो है क्रिमिनल ठहरा दिया, ठीक है। दूसरा है एच नॉट इज फॉल्स, मतलब क्रिमिनल जो है इनोसेंट नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल जो है वो इनोसेंट नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, क्रिमिनल जो है इनोसेंट नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल जो है, द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। See, to better understand this, so H naught is that so I am calling that person accused is innocent. Accused is innocent, and the null hypothesis is that accused is not innocent. Now what I am saying is that first is कि H naught true है, कि वो सही में इनोसेंट है, ठीक है, वो सही में इनोसेंट है, और आप इस चीज़ को जो है रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पुलिस ने जो है सपोज मतलब आपने एरर कमिट कर दिया, टेस्टिंग में एरर कमिट कर दिया कि जो है वो तो इनोसेंट है सही में, लेकिन आपने उसको क्रिमिनल ठहरा दिया। सेकेंड इज एच नॉट इज फॉल्स एंड यू आर नॉट रिजेक्टिंग इट। एच नॉट इज फॉल्स मतलब कि एच नॉट इज दिस, एक्यूज इज इनोसेंट, बट एक्यूज जो है सही में इनोसेंट नहीं है, ठीक है, एक्यूज सही में इनोसेंट नहीं है, ठीक है, वो सही में क्रिमिनल है, लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो, आप यू आर नॉट रिजेक्टिंग इट, यू आर नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। सो विच ऑफ दिस इज मोर डेंजरस, कि वो सही में क्रिमिनल है, ठीक है, लेकिन आपने एरर कमिट कर दिया और आपने प्रोनाउंस कर दिया जजमेंट कि वो क्रिमिनल नहीं है, बेसिकली आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट वुड बी मोर डेंजरस टू द सोसाइटी ना, क्योंकि वो बाहर भाग जाएगा तो मतलब ही स्टिल अ क्रिमिनल, ही कैन कमिट क्राइम। So basically, to simplify this, there are two errors which a researcher can commit, ठीक है, there are two errors कि कोई चीज़ ट्रू है, ठीक है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है कि कोई चीज़ फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो क्या ज़्यादा डेंजरस है इस केस में? कोई गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना हमेशा ज़्यादा डेंजरस होता है, कोई गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना हमेशा ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे